Good evening, everyone. Demand raised for construction of Dadri Rohtak Road in the Assembly. Construction will start from September 15. Sunil Sarpal Sangwan. In response to the MLA B&R Minister Gangwa gave information road will be built with the 37.62 crore. BJP's Dadri MLA Sunil Sarpal Sangwan raised the issue of non-starting of construction of Dadri Rohtak Road even after tendering in the assembly during the monsoon session, on which Public Works Department Minister Ranbir Gangwa has replied about starting construction from September 15. After the construction of this road starts, the people of the Dadri constituency will be benefit in reaching many places, including Rohtak, Panipat, Chandigarh. MLA Sunil Sarpal Sangwan told that during the assembly elections, he said promised to renovate Dadri Rohtak Road. As soon as he became MLA, a tender of 37 crore 62 lakhs was allotted on August 18th. Chief Minister Naib Singh Saini government for this 37.37 kilometer long road. Minister Ranbir Singh Gangwa replied in the assembly that construction of Dadri Rohtak Road will start from September 15. 1 year has been fixed as the time for the constructions of this road. The MLA said that Dadri constituency will benefit a lot after the construction of Dadri Rohtak Road. MLA Sunil Sarpal Sangwan said that with the support of the public, he is taking public service forward in the coming days. There will be an effort to make Dadri region a leading constituency in terms of development. Deputy Commissioner reprimanded wireless officers for pending complaints. Deputy Commissioner said that action will be taken if complaint is kept pending. It will be recorded in the ACR of the concerned officer Charkhi Dadri. 22 action will be definitely be taken against the officers of the district who adopt a lax attitude towards the complaints of the citizen. The work done to resolve the complaints will be also be recorded the SCR of the concerned officer. Deputy Commissioner Munish Sharma scolded the officers who kept the complaints pending in the review meeting. The complaints made by the citizens of the district regarding various issues were reviewed by Deputy Commissioner on Friday. In the meeting, he made it clear that every complaint received should be settled within a week. If the matter of any complaints is related to the scheme and headquarters, then a detailed report should be given. Also upload the photo of the time of complaint and after it on the portal. He said that officers who kept complaints pending should change their working style, otherwise action will be taken against them. The Deputy Commissioner said that the progress of all the officers of the district towards the well will also be reviewed, and there will be special monitoring on the efforts made to settle the complaints. The report of efforts, the progress of the officers will also be recorded in the ECR of the concerned officer. He said that all the officers should priority to the resolution of complaints and work with the positive attitude. Take action taken on every complaint in writing. No matter should be in oral form. The office head of the concerned department will be personally responsible for the resolution of complaints. All the stray animals of the city should be caught by 31st August. Deputy Commissioner Munish Sharma has directed the Municipal Council to catch all the street animals from the city by 31st August. Along with this, he has also asked to install CCTV cameras at all the entry points of the city for monitoring.
In the meeting held, the Deputy Commissioner took the progress report from the Municipal Council regarding the work of coaching street animals and said that the government has set a time till 31st August to coach stray animals from the city. The Nagar Parishad should ensure that the campaign being run to coach stray animals in Dadri city is intensified and all street animals should be caught left cow shelters within a regulated time. So far out 350 animals from Dadri city, about 190 stray animals have been caught. Personal loan scheme will be women self-reliant loan up to 1 lakh rupees can be available. The Haryana government has started a personal loan scheme through the Women Development Corporation to make women self-reliant and economically and socially empowered in the rural and urban areas, under which the loan of up to 1 lakh rupees is provided through banks. Deputy Commissioner Munish Sharma said that under the personal loan scheme by the Haryana government, families with an annual income of less than 1.80 lakh and women who are permanent residents of Haryana will be given the benefit of this scheme. At the time of application, says of the women must be between 18 and 16 years and the applicant should not be a defaulter of the loan taken earlier. Under the scheme, the government will provide a grant of 10,000 to general category women and 25,000 to a scheduled category women through the Women Development Corporation. The scheme includes all activities except the negative activities included in the list of the industry department and KVIB. These activities include grocery shops, clothes shops, salons, doing centers, beauty parlors, tailoring boutiques, conference shops, fruit stall, tiffin services, pottery making, etc. To avail the benefits of this scheme, the prescribed documents will be have to submitted along with the application. These documents include application form, family identity card, Aadhaar card, passport size photo, etc. And 2 copies of all documents are required. For more information about the scheme, you can contact the Women Development Corporation office. It is necessary to register kharif crops on Meri Fasal Mera Byora portal. Farmers can register online till 31st August. Farmers of the district who have shown kharif crops must register their crops on Meri Fasal Mera Byora portal. Keeping in view the interest of the farmers, the government has extended the last date of registration 31st August. Deputy Commissioner Munish Sharma said that the crop to be purchased by the government will be purchased only from those farmers who registered on this portal. In such a situation, farmers should ensure timely registration to avoid any inconvenience and sell the crop and the price fixed by the government. The benefit of various schemes run by the government for the welfare of farmers will also be available only to those who registered on the portal. For registration, it is necessary for the farmer to have a family identity card. He said that farmers can register their crops by visiting the portal themselves and through the nearest common service center. For any information, farmers can contact the toll-free number 1800-180-21117. Deputy Commissioner said that by the registering on the portal, the government collects the details of the farmers, which makes the process of calling them to the market engineer. The time of coming to the market is informed by setting SMS to the mobile number of the farmers. Registration on the portal is also necessary to avail the benefits of the Prime Minister Crop Insurance Scheme. 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे हैं।
उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 4। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह, गांव कोसली, जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्होंने सदैव लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव ढाणी, रहीमपुर, जिला भिवानी; स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू, रोहतक; लेफ्टिनेंट विजय नरवाल, करनाल; फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा, बाल्खी, जिला रेवाड़ी; सब लेफ्टिनेंट परवेश सांगवान, गांव छपार, जिला चरखी दादरी; निरीक्षक राम अवतार, गांव सुधराना, जिला रेवाड़ी; वारंट ऑफिसर मोतीलाल राठी, गांव सांखोल, जिला जज्जर; नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव झोपड़ा, जिला सिरसा; उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मौड़ी, जिला चरखी दादरी; उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उदेशीपुर, जिला सोनीपत; सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव झुक्कू, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार महावीर सिंह, गांव गोत, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार विक्रम सिंह, गांव दागकला, जिला भिवानी; हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी; हवलदार राजपाल कादियान, गांव सिवाना, जिला जज्जर; हवलदार संजय सिंह, गांव कवात्रन, जिला कैथल; हवलदार वेदपाल सिंह यादव, गांव मिश्री, जिला चरखी दादरी; हवलदार नंद कुमार, गांव खायरा, जिला महेंद्रगढ़; हवलदार रविंद्र दुहन, गांव चुलियाना, जिला रोहतक; हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेदा खादर, जिला यमुनानगर; LME मनोज कुमार, गांव लाड, जिला चरखी दादरी; LEMR विपिन, गांव निवाज नगर, जिला महेंद्रगढ़; नायक मन्नू, गांव डुमर खां खुरद, जिला जींद; नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा, गोपालपुरा, जिला रेवाड़ी; लाश नायक दिनेश कुमार, गांव नगला, मोहम्मदपुर, जिला पलवल; लाश नायक मनोज फोगाट, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी; लाश नायक सोनू यादव, गांव भिंडावास, जिला झज्जर; LAC नवीन श्योराण, गांव काकडोली, हुक्मी, जिला चरखी दादरी; एयरक्राफ्टमैन सचिन रोहिल, गांव भिवानी रोहिला, जिला हिसार; सिपाही अजय कुमार, गांव संढोल, जिला हिसार; सिपाही अमित सांगवान, गांव सारंगपुर, जिला चरखी दादरी; सिपाही अमित कुमार, गांव फतेहपुर, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही अजय यादव, गांव बल्हा कला, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही गुरमीत सिंह, गांव करोड़ा, जिला कैथल; सिपाही धर्मेंद्र ग्रेवाल, गांव धारण की ढाणी, जिला रेवाड़ी; सिपाही इंद्रजीत, गांव सैद अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही रवि कुमार, गांव दनौदा, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही धर्मवीर सिंह, गांव बास किरारोद, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही सुभाष चंद, गांव घाटाशेर, जिला महेंद्रगढ़; सिपाही मनदीप कुमार पूनिया, गांव ब्याणा खेड़ा, जिला हिसार; सिपाही परवीन, गांव अचीना, जिला चरखी दादरी; अग्निवीर कमल कंबोज, गांव लोहारी, रागो, जिला हिसार; अग्निवीर नवीन जाखड़, गांव सालावास, जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
शोक प्रस्ताव 6, यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 7, यह सदन 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मारे गए 260 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस दुर्घटना में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया। यह सदन इस दुर्घटना में सभी मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 8, यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी की चाची श्रीमती गुरबचनी देवी, सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी के चाचा ससुर श्री हरि सिंह, विधायक श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चाची श्रीमती सुप्रभा देवी और भाभी श्रीमती राजवंती देवी, विधायक डॉक्टर रघुवीर कादियान जी की भाभी श्रीमती सरोज कुमारी, विधायक श्री राम कुमार गौतम के चचेरे भाई श्री देवेंद्र कुमार, विधायक श्री घनश्याम अरोड़ा की चाची श्रीमती सुदर्शना कुमारी, विधायक श्री सतीश कुमार फागना के साले डॉक्टर राजेंद्र मावी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा के भाई श्री चंद्रकांत भनोट तथा विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला के ताऊ श्री महावीर सिंह, ताई श्रीमती रोशनी देवी और चचेरे भाई श्री संदीप सिंह के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगतों के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 9, यह सदन सहायक उप निरीक्षक वीरभान, गांव नौताना, जिला महेंद्रगढ़ तथा लाश नायक आशीष कुमार, गांव मालड़ा सराय, जिला महेंद्रगढ़ की शहादत पर भी सत सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। अध्यक्ष जी, जैसा नेता सदन ने पढ़ा है शोक प्रस्ताव संख्या नंबर 1, यह सदन जम्मू और कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के भूतपूर्व राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक के 5 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ। ये वर्ष 74 से 77 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 80 से 89 के दौरान राज्यसभा व वर्ष 89 से 91 के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 90 के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य व पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर और मेघालय, गोवा, उड़ीसा और बिहार के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश ने एक प्रखर राजनेता और कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। इनको मैं जानता था जब से ये स्टूडेंट लीडर थे, तो लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, उनको राज्य के समान से जो उनका करना चाहिए था, अंत्येष्टि करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। हमारे को इस बात पे हुआ है। शोक प्रस्ताव नंबर 2, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह मैन के 2 अगस्त 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 82 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 82 से 87 के दौरान हैफड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक व कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है।
प्रस्ताव नंबर 3, यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि 5 मई 2025 को दुखद हुए निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 4, यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह गांव कोसली जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्हें सदैव लोगों को सामाजिक बुराइयों से दूर रखने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया है और इस सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 5, यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना अश्रुपूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता के लिए रक्षा के लिए अद्भुत साहस और वीरता के परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव टाणी रहीमपुर भिवानी, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू रोहतक, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल करनाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव गांव माजरा बाल्की जिला रेवाड़ी, सब लेफ्टिनेंट प्रवेश सांगवान गांव छपार जिला दादरी, निरीक्षक राम अवतार गांव सुधराना जिला रेवाड़ी, वारंट ऑफिसर मोतीलाल राठी गांव सांखौल जिला झज्जर, गांव नायब सूबेदार बलदेव सिंह गांव चौपड़ा जिला झज्जर सिरसा, उप निरीक्षक जय भगवान गांव मोडी जिला चरखी दादरी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार गांव उदेशीपुर जिला सोनीपत, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार गांव दुख जिला महेंद्रगढ़, हवलदार महावीर सिंह गांव कौन जिला महेंद्रगढ़, हवलदार विक्रम सिंह गांव टांगकला जिला भिवानी, हवलदार मनोज यादव गांव नेहरूगढ़ जिला रेवाड़ी, हवलदार राजपाल काद्यान गांव सिवाना जिला झज्जर, हवलदार संजय सिंह गांव का जिला कैथल, हवलदार वेदपाल सिंह यादव गांव मिश्री जिला चरखी दादरी, हवलदार नंद कुमार गांव खायरा जिला महेंद्रगढ़, हवलदार रविंदर दून गांव चुलियाना जिला रोहतक, हवलदार विजेंद्र संधू गांव लेदा खादर जिला यमुनानगर, LME मनोज कुमार गांव लाड जिला चरखी दादरी, LEMR विपिन गांव निवाज नगर जिला महेंद्रगढ़, गांव नायक मन्नू गांव डूमरखा खुर्द जिला जींद, नायक अमरजीत सैन गांव प्राणपुरा गोपालपुरा जिला रेवाड़ी, लांस नायक दिनेश कुमार गांव नंगला मोहम्मदपुर जिला पलवल, लांस नायक मनोज फोगाट गांव समस्तपुर जिला चरखी दादरी, लांस नायक सोनू यादव गांव भिंडावास जिला झज्जर, LAC नवीन शौरान गांव ककड़ौली हुक्मी जिला चरखी दादरी, एयर क्राफ्टमैन सचिन रोहिल गांव भिवानी रोहिला जिला हिसार, सिपाही अजय कुमार टंडौल जिला हिसार, सिपाही अमित सांगवान गांव सारंगपुर चरखी दादरी जिला, सिपाही अमित कुमार गांव फतेहपुर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अजय यादव गांव भला कला जिला महेंद्रगढ़, सिपाही गुरमीत सिंह गांव करोड़ा जिला कैथल, सिपाही धर्मेंद्र ग्रेवाल गांव धारण की ढाणी जिला रेवाड़ी, सिपाही इंद्रजीत गांव सैयद अलीपुर जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रवि कुमार गांव धनौदा जिला महेंद्रगढ़, सिपाही धर्मवीर सिंह गांव बास
किरा रोड, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही सुभाष चंद्र गांव, घाटा शहर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही मनदीप कुमार पुनिया गांव, याना खेड़ा, जिला हिसार, सिपाही परवीन गांव, हचीना, जिला चरखी दादरी, अग्निवीर कमल कंबोज गांव लोहारी, रादो, जिला हिसार, अग्निवीर नवीन जाखड़ गांव सालाबाद, जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर सत नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 6। यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों की दुखद व असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झंझोड़ कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। प्रस्ताव नंबर 7। यह सदन 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मारे गए 260 व्यक्तियों के असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस दुर्घटना में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी का भी निधन हो गया। यह सदन इस दुर्घटना में सभी मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण की चाची श्रीमती गुरबचन देवी, सांसद किरण चौधरी के चाचा ससुर श्री हरि सिंह और मेरी चाची और भाभी विधायक डॉक्टर रघुवीर सिंह कात्यायन की भाभी श्रीमती सरोज कुमारी, विधायक श्री राम कुमार गौतम के चचेरे भाई देवेंद्र कुमार, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा की चाची श्रीमती सुदर्शना कुमारी, विधायक श्री सतीश कुमार फागना के सारे डॉक्टर राजेंद्र मावी, विधायक श्रीमती शक्ति ईरानी के भाई चंद्रकांत बनोट जो मंत्री भी थे वहां, तथा विधायक श्री आदित्य सुरजावाले के ताऊ श्री महावीर सिंह, ताई श्री रोशनी देवी और चचेरे भाई संदीप सिंह के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। बताओ नंबर 9। ये सदन सहायक उप निरीक्षक वीरबान गांव नौताना, जिला महेंद्रगढ़ तथा लांस नायक आशीष कुमार गांव मालडा सराय, जिला महेंद्रगढ़ की शहादत पर भी सशक्त नमन करता है और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री सतपाल मलिक जी के 5 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे वर्ष 1974 से 1977 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1980 से 1989 के दौरान राज्यसभा तथा वर्ष 1989 से 91 के दौरान लोकसभा के सदस्य रहे। वे वर्ष 1990 के दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री भी रहे। उन्होंने जम्मू कश्मीर, मेघालय, गोवा, उड़ीसा तथा बिहार के राज्यपाल पद को सुशोभित किया। उनके निधन से देश एक प्रखर राजनेता एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 2। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री इंदर सिंह नैन के 2 अगस्त 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म
11 अगस्त 1936 को हुआ। वे वर्ष 1982 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1982 से 87 के दौरान हैफर्ड के चेयरमैन रहे। उनकी खेलों में विशेष रुचि थी। उनके निधन से एक योग्य विधायक, एक कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक प्रस्तुत परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरिराम वाल्मीकि को 5 मई 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1949 को हुआ। वे वर्ष 2005 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे समाज के गरीब एवं कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के एवं उत्थान के लिए सदैव समर्पित रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 4। यह सदन स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल सिंह, गांव कुसली, जिला रेवाड़ी के 15 जून 2025 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 5 जनवरी 1920 को हुआ। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लिया और 2 वर्ष जेल में रहे। उन्हें सदैव लोगों के सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। उनके निधन से देश एक स्वतंत्रता सेनानी की सेवाओं से वंचित हो गया। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 5। यह सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपनी अश्रुपूर्ण नमन अर्पित करता है। उन्होंने मातृभूमि की एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इन वीर सैनिकों के नाम इस प्रकार हैं: कर्नल शमशेर सिंह, गांव ढाणी, रहीमपुर, जिला भिवानी, स्क्वाड्रन लीडर लोकेंद्र सिंह संधू, रोहतक, लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, करनाल, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव, गांव माजरा भाखली, जिला रेवाड़ी, सब लेफ्टिनेंट प्रवेश सांगवान, गांव छपार, जिला चरखी दादरी, निरीक्षक राम अवतार, गांव सुधराना, जिला रेवाड़ी, वारंट अफसर मोतीलाल राठी, गांव संखोल, जिला झज्जर, नायब सूबेदार बलदेव सिंह, गांव झोपड़ा, जिला सिरसा, उप निरीक्षक जय भगवान, गांव मोड़ी, जिला चरखी दादरी, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव उद्देश्यपुर, जिला सोनीपत, सहायक उप निरीक्षक कृष्ण कुमार, गांव झुंझुनू, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार महावीर, गांव गोद, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार विक्रम सिंह, गांव दांगकला, जिला भिवानी, हवलदार मनोज यादव, गांव नेहरूगढ़, जिला रेवाड़ी, हवलदार राम काद्यान, गांव सिवान, जिला झज्जर, हवलदार संजय सिंह, गांव करावतन, जिला कैथल, हवलदार वेदपाल यादव, गांव मिश्री, जिला चरखी दादरी, हवलदार नंद कुमार, गांव ख्यारा, जिला महेंद्रगढ़, हवलदार रविंदर दुहन, गांव चुलियाना, जिला रोहतक, हवलदार विजेंद्र संधू, गांव लेदा खादर, जिला यमुनानगर, LME मनोज कुमार, गांव लाड़, जिला चरखी दादरी, LEMR विपिन, गांव निवाजन नगर, जिला महेंद्रगढ़, नायक मनु, गांव डूमरखा खुर्द, जिला जींद, नायक अमरजीत सैन, गांव प्राणपुरा गोपालपुरा, जिला रेवाड़ी, लांस नायक दिनेश कुमार, गांव नंगड़ा मोहम्मदपुर, जिला पलवल, लांस नायक मनोज फोगाट, जिला समसपुर, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी, लांस नायक सोनू यादव, गांव भिंडावास, जिला झज्जर, LEC नवीन चौरान, गांव काकड़ोली, हुकुम, जिला चरखी दादरी, एयरक्राफ्टमैन सचिन रोहिल, गांव भिवानी रोहिला, जिला हिसार, सिपाही अजय कुमार, गांव संडोल, जिला हिसार, सिपाही अमित सांगवान, गांव संगरपुर, जिला चरखी दादरी, सिपाही अमित कुमार, गांव फतेहपुर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही अजय यादव, गांव बलाह कला,
जिला महेंद्रगढ़, सिपाही गुरमीत सिंह, गांव क्रोड़ा, जिला कैथल, सिपाही धर्मेंद्र ग्रेवाल, गांव धारा की ढाणी, जिला रेवाड़ी, सिपाही इंद्रजीत, गांव सैद अलीपुर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही रवि कुमार, गांव दनोदा, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही धर्मवीर, गांव बास करारकोट, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही सुभाष चंद्र, गांव घाटा शेर, जिला महेंद्रगढ़, सिपाही मनदीप कुमार पूनिया, गांव ब्याणा खेड़ा, जिला हिसार, सिपाही प्रवीण, गांव अचीना, जिला चरखी दादरी, अग्निवीर कमल कंबोज, गांव लोहारी राधो, जिला हिसार, अग्निवीर नवीन जाखड़, गांव सालावास, जिला झज्जर। यह सदन इन वीरों की शहादत पर शत शत नमन करता है और शोक संत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 6। यह सदन 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में मारे गए 26 निर्दोष लोगों के दुखद एवं आकस्मिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस हृदय विदारक घटना ने समूचे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सदन आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करता है और दिवंगतों के शोक संत परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 7। यह सदन 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रहे एयर इंडिया विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मारे गए 260 व्यक्तियों के असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट करता है। इस दुर्घटना में गुजरात के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी का भी निधन हो गया था। यह सदन इस दुर्घटना में सभी मृत व्यक्तियों के परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 8। यह सदन विधानसभा अध्यक्ष श्री हरविंदर कल्याण जी की चाची श्रीमती गुरबचनी देवी, सांसद श्रीमती किरण चौधरी जी के चाचा ससुर श्री हरि सिंह, विधायक श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की चाची श्रीमती सुभद्रा देवी और भाभी श्रीमती राजवती देवी, विधायक डॉक्टर रघुबीर कादियान जी की भाभी श्रीमती सरोज कुमारी, विधायक श्री रामकुमार गौतम के चचेरे भाई श्री देवेंद्र कुमार जी, विधायक श्री घनश्याम दास अरोड़ा जी की चाची श्रीमती सुदर्शना कुमारी, विधायक श्री सतीश कुमार फग्गन के साले डॉक्टर राजेंद्र बावी, विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा के भाई श्री चंद्रकांत भनोट जी तथा विधायक श्री आदित्य सुरजेवाला के ताऊ श्री महावीर सिंह, ताई श्रीमती रोशनी देवी और चचेरे भाई श्री संदीप सिंह के दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिव्यांगों के शोक संत परिवारों सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में जो शोक प्रस्ताव रखे हैं और उन पर अन्य दलों के सदस्यों ने जो अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, मैं भी अपने आप को उनकी भावनाओं के साथ जोड़ता हूं और शोक व्यक्त करता हूं और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वह उन सभी दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। मैं इस सदन की भावनाओं को शोक संतप्त परिवारों के पास पहुंचा दूंगा। अब मैं सदन में उपस्थित सभी सदस्यगणों, मीडियाकर्मी व अधिकारियों सहित तथा सभी दीर्घाओं में उपस्थित महानुभावों से विनती करूंगा कि उन महान आत्माओं की शांति के लिए खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें।
ओम शांति। माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री लहरी सिंह पूर्व विधायक अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। ये सदन उनका स्वागत करता है। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सारण जिला यमुनानगर के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरू होता है। श्री सुनील सतपाल सागवान। क्वेश्चन नंबर 1 जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आपको एक एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ है। अभी प्रदेश प्रश्नकाल है। अभी एडजर्नमेंट मोशन, अध्यक्ष महोदय, एडजर्नमेंट मोशन दिया। सब नियम ठीक है। वो प्रश्नकाल का विषय नहीं है। वो प्रश्नकाल का विषय नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। नई प्रथाएं शुरू ना कीजिए। नई प्रथाएं शुरू ना कीजिए। प्रश्नकाल बहुत इंपॉर्टेंट। नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। प्रश्नकाल और जो भी उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में जिस तरीके से कार्रवाई चलेगी उस तरीके से आप अपनी बात रखिए। आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। हाँ, ठीक है। अभी प्रश्नकाल को चलने दीजिए। बैठो। हाँ, तो पहले प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल पूरा हो जाए। सभी सदस्यों ने अपने प्रश्न लगाए हुए हैं, वो जानना चाहते हैं। एक रुके। ये हर बार का काम है। नई प्रथाएं मत खड़ी करिए। आप नई प्रथाएं मत खड़ी करिए। प्रश्नकाल पहले पूरा हो जाने दीजिए। आप नए कानून रूल बना के लेके आएंगे क्या? प्रश्नकाल पूरा हो जाने दीजिए। आपको ये नहीं पता कि विधानसभा के नियम क्या है? पहले नहीं, ये नए सिस्टम मत बनाइए। कौन से निकाल के लेके आए हो आप? प्रश्नकाल के बाद यही काम होना है। प्रश्नकाल के बाद यही काम तो होना है भाई। अनुरोध है, इसमें लिखा हुआ है अंडर रूल 66 हमने आपको एडजर्नमेंट मोशन दिया है, जिसमें अगर कोई महत्वपूर्ण, अध्यक्ष महोदय, इससे महत्वपूर्ण बिल्कुल आया हुआ है। बेटियों का मर्डर हो रहा है। बिल्कुल आया हुआ है। तो अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल आपका स्थगन प्रस्ताव आया हुआ है, परंतु मेरा फिर से निवेदन है कि प्रश्नकाल के बीच में आप व्यवधान पैदा ना करें। हमारा भी अनुरोध है। हाँ, ठीक है। वो मुझे जानकर, वो मैंने पढ़ा है और वो अंडर कंसिडरेशन है। पर इस तरीके से आप मत कीजिए। वो अंडर कंसिडरेशन है। मैंने बता दिया। बिल्कुल। हाँ, ठीक है। क्या आप प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण नहीं समझते? नहीं, क्या आप प्रश्नकाल को महत्वपूर्ण नहीं समझते? सभी सदस्यों ने प्रश्न लगाए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, क्या नियम प्रक्रियाएं कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। इनकी मनसा स्पष्ट जाहिर हो रही है। सदन का समय बर्बाद करना, समय बर्बाद करना। सीट पे चलिए। आप लोगों ने इस तरह का काम उठाया। सीट पे चलिए, यहाँ नहीं खड़े। आप अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं और जिम्मेवारियों से भाग रहे अपनी। ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। कोई रिकॉर्ड की बात नहीं है। वो जानकारी जी मंत्री जी। नहीं, ऐसा नहीं। सब पड़ा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीकर साहब, नहीं, ठीक है। प्रश्नकाल के बीच में नहीं। बिल्कुल। स्पीकर साहब, नहीं। मुझे लगता है, देखो, ऐसा है। लगता है बिल्कुल सब जानकारी है। इन लोगों को जरूरी। इस एक मिनट, मैं कुछ कह रहा हूँ। मैं कुछ कह रहा हूँ। मेरी बात को सुनिए।
ये सही है, मैं जानता हूं बहुत जगहों पे नया रिवाज बन रहा है। दिल्ली में 1 मिनट, नो नो नो, इसका नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि अगर दिल्ली के अंदर वो माहौल बनाया जा रहा है तो हरियाणा में भी बनाया जाएगा। नो, प्रश्नकाल से पहले नहीं, अंडर कंसिडरेशन है। प्रश्नकाल को चलने दीजिए, प्रश्नकाल में सभी सदस्यों ने प्रश्न पूछे हुए हैं, उसको चलने दीजिए। नियम प्रक्रिया के हिसाब से चलेगा। नो, मुख्यमंत्री जी कोई बात कह रहे हैं, आप बैठिए। मुख्यमंत्री जी कोई अपनी सीट पे चलिए, जी मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, 1 मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, ये क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है। 1 मिनट, मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। इनका ये सवाल क्वेश्चन आवर में भी लगा हुआ है, आप उस क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करा लें, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। आपके समय में क्या हालात होते थे लॉ एंड ऑर्डर के? आप अपनी सीट पे जाइए। प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा, ये भागने के लिए आप अपनी सीट पे जाइए। प्रश्नकाल से पहले नहीं होगा। नहीं, आप सीट पे जाइए। So friends, thank you very much for this watching PPT News. So then friends, take care. Bye, see you. Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, Jai Hind, Jai Bharat. Take care.